Hello everyone, this is Dr. Neeta and today we are going to understand few basic details about cognitive behavioral therapy. Now name itself making you understand that something regarding behavior. So behavior comes through our mental attitude, what kind of psychology, what kind of mental situation, what kind of mental condition we are having. Based on that, actually our behavior is there are several different problems actually you might have not heard before, but yeah, there are several different problems which people face due to some of the psychological conditions, and because of that actually they need to go through some kind of therapies and some kind of treatments. So these are major kind of disorders which occur due to some kind of specific mental conditions, and that can be treated with the help of some kind of simple therapies, just like cognitive behavioral therapies. So Nita Training and Consulting Services announces, and already from today we are starting this workshop. It's a 15 days workshop on cognitive behavioral therapy. Now, within this workshop, there are several things we are going to discuss that we will discuss later on. But first, let's understand what do you mean by cognitive behavioral therapy? होता क्या है actually CBT? किसने मतलब इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड ये किस लिए है? तो जैसे आपको पता ही है, हमारा जो जो भी वर्कशॉप का पैटर्न है उसमें दोनों के लिए है। मतलब अगर आप थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आपको ऑलरेडी आप साइकोलॉजिस्ट है या फिर आपको इस फील्ड का अच्छे से नॉलेज है, मेडिकल फील्ड में अगर आप हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप थेरेपीज़ एंड ऑल ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख रहे हैं, तो उसमें अगर एडिशनल आपको अंडरस्टैंड करना है कि भई अच्छा मैं इस टाइप के ट्रीटमेंट्स भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू इट। And if you are an individual and you just want to understand what exactly this therapy and uh, for what reason actually these kind of therapies are useful, so one individual can also join this program, and one who is actually going through such kind of mental disorders, they may also understand the detail of this program and they may treat themselves. So this is for everyone, those who feel that okay, these are some behavioral issues, and these are simple issues like हो सकता है मेजर एंजाइटी प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन है किसी बात का, उसकी वजह से एक्चुअली दे कैनॉट एक्सटेंड देयर लिमिट्स एंड दे कुड नॉट एक्चुअली achieve whatever they actually wants to achieve in their life. And there are several different issues that we are going to see, even eating disorders, OCD and PSTD and all. So there are several different diseases which can disorders which can be treated with the help of such kind of therapies. नाउ द पैटर्न इज सेम, जैसे हमारा सारे व्हाट्सएप कोर्सेज का पैटर्न होता है वैसे ही अपना इस कोर्स का भी पैटर्न रहेगा। रिकॉर्डेड मोड में आपको जो है सारा कोर्स मटेरियल मिलने वाला है। तो आपको पीडीएफ लेसन्स जो है, वो आपको पीडीएफ लेसन्स जो मिलेंगे उसमें एंड में कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, जो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं अगर आप सर्टिफाई होना चाहते हैं। तो अगर आप सर्टिफाई नहीं होना चाहते हैं, जस्ट आप आपके लर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो आपने असाइनमेंट्स नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन अगर आपको हमें सर्टिफाई करना है तो आपको असाइनमेंट्स करना पड़ता है। ये एक रूल है हमारा। तो इस तरह से हमारे कोर्सेज होते हैं। जैसे आप जो भी रजिस्ट्रेशन फी होता है वैसे पे करते हो आप मेन ग्रुप में ऐड किए जाते हो, और जो पेड ग्रुप होता है वहाँ पे कोर्स चलता है। तो नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्टली सीबीटी होता क्या है, कौन से डिसऑर्डर्स पे एक्चुअली सीबीटी का यूसेज होता है, एंड किसने ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स जो है वो हम आज के प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो I'll share my presentation with you all. Hope it must be visible to all of you. Okay. So now let's see the details about CBT. Now CBT include three different words, that is cognitive behavioral therapy, and mostly this is regarding your thoughts, your emotions, and your behavior.
Now it's interrelated. It's not only thought, it's not only behavior, it's not only emotions. Actually, it's interrelated. Means you are uh, once actually you create or generated any thought, actually it leads to some kind of behavior, and that specific behavior may create some kind of emotion, or first emotion come, then thoughts come, then behavior comes. So it is like interlinked with each other. It's not without like only behavior is not without emotion and thought. Even only thoughts are not without emotion and behavior. So it's interrelated. Now there are again one more aspect, that is physical sensation. Sometimes you may call it behavior, or you may call it as a physical sensation. Means after behavior it comes in physical sensation, and when it comes to physical sensation, it leads to some kind of disorders or problem. So this is what is something we need to understand कि अच्छा हमें अगर ट्रीट करना है थॉट लेवल पे, बिहेवियर लेवल पे, या फिर इमोशन मतलब बिहेवियर लेवल पे, अगर ऑब्वियसली प्रॉब्लम कब होगा जब कोई बिहेवियरल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाएगा, तो दैट इज विजिबल डिसऑर्डर, है ना, कि कोई अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। आप ऐसे ऐसे डिसीजेस होते हैं एक्चुअली, मेंटल डिसीजेस या फिर डिसऑर्डर्स, जो आप मतलब सोच भी नहीं सकते, और हमें लगता है कि हम एकदम नॉर्मल है, बट देर आर प्रॉब्लम एक्चुअली विच इज रियली प्रॉब्लम, एंड दैट इज नॉट नॉर्मल. So yeah, there are several different problems which can be treated with CBT. So I hope this must be clear कि अच्छा अगर हमें behavior को treat करना है, तो of course वो सिर्फ behavior treat नहीं होगा, उसके लिए हमें emotion level पे जाना पड़ेगा, thought level पे जाना पड़ेगा, तो जाके फिर physical sensation जो है वो treat हो सकता है. तो this is what is basic thing. Now let's see कि what are the common type of treatments actually done with the help of CBT. तो जो problems है वो anger problem हो सकते हैं, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। अभी हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में सेपरेट मैंने स्लाइड लिया है, उसके वहां पे मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगी आपको कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन तो आजकल मतलब नॉर्मल छोटे बच्चों को भी पता है कि डिप्रेशन क्या होता है। पहले तो ये वर्ड मतलब डिक्शनरी में भी हमें मतलब पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है डिप्रेशन। और टू बी वेरी फ्रैंक, इंडियंस में डिप्रेशन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ साल पहले नहीं था, बट नाउ एक्चुअली सिचुएशन change, and there have we are facing a lot of different issues in our culture, society, and because of that actually we all come across such kind of mental disorders and problems. Then drugs or alcohol problem, even it's not very normal. A few years back actually इतना normal नहीं था, but alcoholism, smoking, tobacco chewing, all these kind of things are now again become common. मतलब इतना ज़्यादा वो फैल गया है कि लोगों को लगता भी नहीं कि okay, this is something addiction, and we should actually work on it, we should overcome this, and it's actually harming us. They may not realize also, and it leads to then several different problems in the later stage. तो ये जो पूरे डिसऑर्डर्स है, ईटिंग के डिसऑर्डर्स है, उसके बाद फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स है, होर्डिंग करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आने वाले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज ओसीडी। ओसीडी भी एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे मतलब भाई ऐसे ही क्यों है, हम नाटे क्यों है, छोटे क्यों है, मोटे क्यों है, स्किन क्यों ऐसे है, मतलब खुद के ही जो भी लुक्स है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हमें अपने आप में लगते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पॉसेसिव हो जाते हैं, ओबेसिव। तो वहाँ पे वो निकालना शुरू कर देते हैं कि हम मोटे हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, and उसकी वजह से फिर खुद को वो बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, तो उस टाइप के फिर प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, उसे ओसीडी कहते हैं। So yeah, these are few of the problems which can be treated with the help of CBT. Again, there are few more disorders which we are going to discuss within this PPT. तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जहाँ पे मतलब एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में स्विच हो जाना, और लगना भी नहीं, मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन सी पर्सनालिटी में इमिडिएटली स्विच हो गए। तो जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपने मूवीज में बहुत सारे देखे होंगे कि किस तरह से एकदम मूड स्विंग हो जाता है, एंड दे चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड व्हेन दे आर इन दैट पर्टिकुलर रोल एक्चुअली they don't know about their actual role, and they get into that particular role in such a way that actually they become that person, right?
So that may be some imaginary character for them, or that may be some kind of uh, characteristic which they always want ki they should have those kind of characteristics, and actually they pursue all those characteristic automatically within that particular time, whatever time they are actually into that particular phase. So this is what is some kind of borderline personality disorder, wherein one person switch different kind of personalities, and they may actually within at that moment of time their mental condition is different, so they may speak another language also. They may speak very fluent, which language actually they don't know within that particular normal mood. They may do that kind of things also, and this happens. So this is again another kind of problem which can be treated with the help of CBT. Then a few of the eating disorders like anorexia and bulimia. यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, खाते जाते हैं, या फिर बस उनको एक मतलब जैसे किसी को एडिक्शन होता है अलग अलग चीज़ों का, वैसे उनको खाने का एडिक्शन होता है, एंड दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप, and they keep on eating, and that kind of problem really leads to such kind of disorders. So that is again a problem. So eating disorder भी होता है, OCD हमने ऑलरेडी देखा कि भाई जहाँ पे हम छोटे मोटे नाटे एंड ऑल वो सारे चीज़ों के बारे में एक्सेसिव सोचने लग जाते हैं, and उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होते हैं. फिर पैनिक डिसऑर्डर्स, बहुत जल्दी पैनिक हो जाना, एंड देन अपने आप पे ताबा खो देना, एंड देन इतना ज़्यादा उसके लिए ये हो जाना कि भी शिवरिंग हो जाएगा, आपको स्वेटिंग आने लगेगा, एंड रेड आईज हो जाएंगे, एंड यू मे नॉट लाइक बी comfortable within that particular time, and you may behave in a very different way. So that is panic disorder. बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाना, तो उसे गुस्सा आना भी हो जाता है. पैनिक होना मतलब थोड़ा सा और हड़बड़ाते हैं हम. Then phobias. Actually, there are n number of different phobias may develop in any person at any moment of time. बचपन से भी हो सकता है. तो वैसे तो कॉमन चीजें होती है, जैसे किसी को अंधेरे का डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फोबियाज होते हैं. जैसे किसी को कुत्ते बिल्ली का डर लगने लगता है, किसी को लोगों से भी डर लगने लगता है. मीन्स देयर आर सेवरल एन नंबर ऑफ फोबियाज. तो और हर एक फोबिया का अलग अलग नाम भी है, उसका नॉमेनक्लेचर भी है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज, एंड वो पर्टिकुलर फोबिया अगर डेवलप हो गया तो पर्सन में बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एज एंड व्हेन दे केम अक्रॉस विद दैट कंडीशन. मीन्स जैसे जिसको अंधेरे का फोबिया है, वो अगर अंधेरे में आ गया तो एक्चुअली पैनिक अटैक भी आ जाएगा, एंड दे विल नॉट फील लाइक बहुत ही डेंजर सिचुएशन से उनको जाना पड़ेगा अगर वो फोबिया अगर उनके अंदर डेवलप हो गया तो बहुत सारे अलग-अलग टाइप के फोबियाज़ होते हैं, एक डर है वो और कुछ नहीं. देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो पीटीएसडी जिसे कहते हैं. तो समझो कोई कंडीशन या फिर सिचुएशन हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, जो भी मतलब समझो किसी ने अपने बहुत नज़दीकी क्लोज़ पर्सन को खो दिया, या फिर अपने साथ समझो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जैसे समझो लेडीज के साथ किसी ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती एंड ऑल किया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अंदर तक घर कर गई. मतलब वो एक ट्रॉमा था, जिस फेज से हम गुजरे वो बहुत डिफिकल्ट फेज हमारे लाइफ का था. तो वो फेज भी गुजर जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जो हमारे साथ होना है वो हो जाता है, बट देन लेटर ऑन मतलब उसके जो इम्पैक्ट होते हैं फिर वो लेटर ऑन फ्यूचर में आते हैं कि भाई ये हो गया, मतलब यहाँ से अभी हमें बाहर निकलना है, बट एक्चुअली वो निकल नहीं पाते, एंड दे कीप ऑन गेटिंग इनटू दैट काइंड ऑफ कंडीशन इन सच अ वे दैट मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ऐसे बहुत सारे मूवीज में भी हम देखते हैं कि कोई एक हादसा उनके साथ हो जाता है, और उस हादसे के बाद की फिर उनकी जो लाइफ होती है. अभी फिलहाल ही मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा उन्होंने पिक्चराइजेशन किया था जो भी प्रॉब्लम उनके साथ हो रहे थे, एंड उनके भी ये सारे फोबियाज एंड ऑल भी दिखाए हैं. लेटेस्ट मूवी है, हाँ, गेम ओवर करके मूवी है, बहुत ही लेटेस्ट है. नाउ इट मे बी ऑन दिस प्राइम वीडियोस एंड नेटफ्लिक्स एंड ऑल. सो उस मूवी में भी इस टाइप की सिचुएशन दिखाई हुई है जहाँ पे पीटीएसडी जो प्रॉब्लम है, हीरोइन जो है वो उस प्रॉब्लम से गुजरती है, एंड शी इज हैविंग फोबिया, उनको अंधेरे से डर लगता है. तो
किस टाइप का एक्चुअली वो पूरा सिनेरियो होता है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने वो सब कुछ दिखाया है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, एंड देन साइकोसिस। तो ऑफ कोर्स साइकोलॉजी से रिलेटेड सो मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हम सीबीटी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम देखा, अब हम अंडरस्टैंड और दो तीन प्रॉब्लम जो अच्छे से बहुत अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा उसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, तो इसे मैनिक डिप्रेशन कहते हैं। इट्स अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉजेस एक्सट्रीम मूड स्विंग। एक मूड से दूसरे मूड में बहुत ज्यादा जल्दी चले जाते हैं, तो उसमें आपके इमोशनल हाई हो सकते हैं, बहुत हाई जा सकते हैं, बहुत लो जा सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम हाई एंड एक्सट्रीम लो पे जाके फिर वो डिप्रेशन को लीड करता है। एंड जब आप डिप्रेस हो जाते हो तो आपको फिर बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, होपलेस फील होता है, एंड यू लूज इंटरेस्ट इन ऑल द काइंड ऑफ एक्टिविटीज विथ प्लेजर एंड इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, and you don't feel like laughing and enjoying. You always feel depressed, and you actually went into that kind of situation wherein you get very low, and you started feeling so much low that now again getting into a different kind of mood wherein actually you enjoy something, you actually celebrate something, it becomes very difficult. So that kind of disorders comes under bipolar disorder, जहाँ पे बहुत इमीडिएट मतलब मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो ये सारे जो है इसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। देन दूसरा है होर्डिंग। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब आपने सुना भी नहीं होगा, इवन मेरे लिए भी जब मैंने ये पढ़ा तो बहुत ही अलग लगा। तो इस बीमारी में जैसे कचरा जमा करने वाले लोग होते हैं ना, वो कैसे कूड़ा एंड ऑल वो सारी चीजें जमा करते रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे होर्डिंग डिसऑर्डर जो है, यहाँ पे हम किसी भी चीज के साथ पजेस होने लगते हैं, और कोई भी चीज हम फेंकते नहीं है या फिर जमा करने लगते हैं, तो उसमें हम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्लास्टिक आइटम है, कांच के है, टूटी फूटी चीजें हैं, पेपर्स है, कुछ पुराने कागजात है, कुछ आए हुए हमें मेल्स है, कुछ भी है, तो वो सारा कूड़ा हम जमा करने लगते हैं, एंड वी बिकम पजेस अबाउट दैट, एंड वी नेवर फील लाइक दे शुड मूव अवे फ्रॉम अस। सो दैट काइंड ऑफ डिसऑर्डर। तो होर्डिंग क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। तो ओवरव्यू, होर्डिंग डिसऑर्डर इज अ persistent difficulty discarding or parting with possessions because of a perceived need to save them। उनको सेव करना है, इसलिए उनको मतलब वो उनसे डिपार्ट नहीं हो सकते, वो उनको जुदा नहीं करना चाहते। चाहे मैंने चिप्स खा लिया और चिप्स का पैकेट है, तो वो पैकेट भी फेंकना नहीं चाहते, बिकॉज नाउ दे हैव got attached with them and they don't want to depart from that particular item. So that kind of problem actually these people face. Then a person with hoarding disorder experience distress at the thought of getting rid of those items। मतलब उनको अगर बोला कि भाई ये फेंकना है, तो दे फील डिस्ट्रेस, एंड उतना डिस्ट्रेस हो जाएगी कि दे में रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। then excessive accumulation of item regardless of actual value occurs। मतलब उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं रहती है, बट वो बहुत ज़्यादा आइटम्स को जमा करना शुरू कर देते हैं, एंड मतलब जैसे कूड़े जैसा उनका आजू बाजू का एटमोसफियर हो जाता है, and they love to actually live in such kind of atmosphere। So this kind of problem is called as hoarding। तो ये कुछ हमने बहुत ही अजीबो गरीब कुछ प्रॉब्लम्स देखे जो मेंटल सिचुएशंस एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग एक्चुअली इसे फेस करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, मतलब ये तो कुछ एक तो हमने डिस्कस किया, लेकिन जैसे रिपीट, मतलब जैसे दिन भर फिर समझो हाथ धो रहे हैं तो बार बार वो हाथ धोने लग जाएंगे, मतलब जिनको क्लीनिंग के लिए ऐसे कि भाई एटमॉस्फेयर में कुछ वायरस आ गया है, मैं यहाँ हाथ रखूंगी यहाँ हाथ रखूंगी तो मेरे हाथ गंदे हो गए, तो बार बार वो हाथ धोना शुरू कर देते हैं। रिपीटेटिव एक ही टास्क करना, जैसे लॉक लगाना है तो समझो बार बार वो लगाएंगे, फिर से निकालेंगे, फिर से लगाएंगे, एंड फिर घर जाएंगे, फिर आएंगे वापस, नहीं लॉक नहीं लगाया, एंड दे विल चेक द लॉक, एंड मतलब बार बार एक ही चीज को वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि नहीं लगा नहीं लगा, गैस बंद किया कि नहीं, तो फिर वो ही बार बार वो चेक करेंगे नल बंद किया कि नहीं। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हम ठीक है ना, हो गया कर दिया, बट उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के अंदर जो लोग होते हैं फिर उनको वो बार बार वही चीज रिपीटेटिवली नजर आती है, वही करना है, and वही उनको मतलब वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, कि दे ऑलवेज फील कि नहीं वो रह गया,
एंड फिर वो उनको वही काम करना है। तो ये सारे भी इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक्चुअली सीबीटी ट्रीट कर सकता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में हमने बात की जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। अब एग्जैक्टली सीबीटी होता क्या है एंड ये क्या है मतलब थेरेपी एंड ऑल, तो उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे थोड़ा। Cognitive behavioral therapy or CBT, as it's more commonly referred to as a therapy that focus on accessing the particular way in which individual think, behave, perceive, act and react। तो एक particular person कैसे behave कर रहा है, react कैसे कर रहा है, think कैसे कर रहा है, act कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ों का जो पहले तो basically study होता है उसे CBT कहते हैं। अब ये जो knowledge है, this knowledge will equip the therapist or individual to deal successfully with their own or their client's behavioral condition and social challenges। तो इसके लिए खुद के लिए या फिर अगर आप थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो दूसरों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को एसेस करने के लिए एक्चुअली ये पर्टिकुलर थेरेपी होता है। तो सीबीटी थेरेपिस्ट वर्क टू अनलॉक एंड रिलीज द पोटेंशियल विद इन देयर क्लाइंट्स टू ब्रिंग about major positive improvements and changes in their lives by focusing upon presenting issues and offering more balanced and focused way of looking at addressing and हैंडलिंग सच मैटर्स विद अ मोर पॉजिटिव आउटकम। तो फिर थेरेपिस्ट बन के आपको क्या करना है, आपको लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, उनकी लेवल को आपको अपग्रेड करना है, उनको जो एक्चुअली वो लाइफ में चाहते हैं वो अचीव करने के लिए आपको उनको हेल्प करना है। तो बेसिकली आप उनको हेल्प करेंगे इन देयर जर्नी to overcome these issues whichever they are suffering from and whatever kind of means leading their life in a more better way, so you are helping them to live their life in a better way, so that are all kind of help or guidance or support you are giving to your clients। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो सीबीटी इज अ पावरफुल एंड प्रैक्टिकल टूल फॉर पर्सनल एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेवलपमेंट। Additionally, this therapy offers strategies and technique for addressing and dispelling negative thought or process or pattern। तो मतलब ये एक ऐसी थेरेपी है जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट तो कर ही सकते हैं, पर्सनल एक्सप्लोरेशन तो कर ही सकते हैं, बट ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपका जो थॉट पैटर्न है, मतलब हर पर्सन का एक थॉट पैटर्न होता है। मोस्टली निगेटिव थॉट पैटर्न वाले लोग होते हैं जहाँ पे निगेटिव थॉट पैटर्न होने की वजह से दे मे नॉट डेयर टू डू समथिंग इन देयर लाइफ। मतलब वो चाहते हैं करना लेकिन वो कोशिश नहीं करते क्योंकि वो पहले से तो होगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, इसको तो बहुत पैसा लगता है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए बहुत सपोर्ट लगता है, मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो इस टाइप का पहले से ही वो थॉट प्रोसेस उनका होता है एंड जकड़ जाते हैं फिर उसमें एंड फिर कुछ कर नहीं पाते लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो जो है मतलब क्यों बहुत ही कम लोग सक्सेस को बहुत नज़दीक से देखते हैं, क्यों बाकी लोग इतना जितना सक्सेस वो एक्चुअली पा सकते हैं या फिर वो डिजर्व करते हैं उतना वो नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर थॉट प्रोसेस। तो क्या कौन से टाइप के थॉट पैटर्न उनके पास है एंड अगर वो निगेटिव है तो फिर उसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो उसके लिए भी सीबीटी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। Then CBT offers the sufferer of panic disorders or agoraphobia and many other similar ailments the solution of learning by practice and repetition, new ways of dealing with difficult situation and anxieties they may cause। तो सीबीटी से हम बहुत सारे नए तरीके सीख सकते हैं लाइफ जीने के लिए एंड जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसको हम अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ये हुआ उसका इंट्रोडक्शन, अगर कंटेंट की बात करें तो कोर्स कंटेंट में हम सीबीटी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, उसका ओरिजिन देखने वाले हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फिर अगर आप थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो क्लाइंट के साथ आपको किस तरह से रैपो बिल्ड करना है, आपको थेरापेटिक रिलेशनशिप कैसे डेवलप करनी है, आपको बैलेंसिंग स्टेटमेंट्स कैसे देने हैं, कॉग्निशन क्या होता है, फिर कौन कौन से टेक्निक्स है सीबीटी के अंदर, फिर कॉग्निशन की प्रॉब्लम क्या है, कंसल्टेशन कैसा किया जाए, फॉर्मुलेशन कैसा किया जाए, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। फिर प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करना, बिहेवियरल टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, कौन कौन सी यूजफुल फिजिकल टेक्निक्स है जिसे हम सीबीटी को एक्चुअली ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स को डिसऑर्डर्स को सीबीटी के अंदर ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक कौन कौन से है, स्लीप मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके बेसिक्स क्या है, एक्टिविटीज को शेड्यूलिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देन डीलिंग विद निगेटिव एंड डिस्टॉर्टेड थॉट प्रोसेस, ये भी हाँ टॉपिक्स जो है वो इस कोर्स के अंदर हम देखने वाले हैं।
तो इस तरह से हमने देखा कि भाई सीबीटी होता क्या है, सीबीटी के एक्चुअली फायदे क्या है, कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो सीबीटी सॉल्व कर सकता है। तो ये जो बेसिक्स हमने देखे, मुझे लगता है अगर आप मतलब थेरेपिस्ट नहीं भी हो या फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं भी हो, फिर भी ऐसे किसी ने देखा होगा कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो मेक देम अवेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मेंटल सिचुएशन दे आर गोइंग इनटू, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि वी आर गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ कंडीशन एंड इवन वी आर नॉट अवेयर कि इट्स अ प्रॉब्लम, and we feel that it's a normal, and as we feel it's not a problem or it's a normal kind of thing, we never work on it. So basically to understand ki, okay, this is a problematic situation and I need to overcome this situation, and for that I need a expert guidance or help. So even to understand all these basics also, you may actually enroll for this workshop. So this workshop we are starting from today on WhatsApp, the similar pattern. We will actually have a main WhatsApp group on which this course will run for 15 days. You will get all the course material in the PDF format in English and Hindi language. Course audio format will be given, means whatever explanation will be there, that audios will be provided, videos will be provided, and reference material will be there. So everything will be provided to you to become CBT therapist. So this is all for introduction about CBT. Thank you very much. If you are having any concern, any doubts or any queries, you may write me in comments or contact me. Thank you. Take care.